Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Tawheed Parvez Bhatt, resource person, Diet Bandipora. Today I am going to deliver my lecture number 6, and in this lecture, we will discuss the inheritance of blood groups. Dear students, we will discuss how the blood groups gets inherited from parent to offspring. So, my dear students, when we talk about the blood groups, we should know that on the basis of groups or blood type, we are classifying the human population into four groups. That means one group with having blood group A, another group having blood group B, and another group having blood group AB, and another group having blood group O. Dear students, these blood groups AB, and O are determined by the genes which are inherited from the parents. That means we can say these blood groups or blood type are inherited from our parents in the same way as that of the other traits, like that of my dear students, our eye color, our hair color, our skin color, and other traits which gets inherited from our parents. So in the same way, the blood groups are inherited from our parents. That means our blood group depends upon our parents. What will be the blood group of our parents, the same will be in the child. So, dear students, now in order to understand the blood group or blood system, we will first discuss a little about antibodies and antigens. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिटरमाइन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज. तो जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, तो हमें पता है जब ब्लड आता है, हम ब्लड is just a fluid which is called as a plasma, and that blood plasma also contains the blood cells like that of red blood cells, white blood cells, platelets, etc. and जो इसका liquid portion होता है that's called as a blood plasma. तो ब्लड ग्रुप जो होता है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस इन द ब्लड. तो एंटीबॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो वी जस्ट नो दैट एंटीबॉडीज जो होते हैं दे आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. और एंटीबॉडीज जो है दैट फॉर्म्स द नेचुरल डिफेंस सिस्टम इन आवर बॉडी व्हेन एवर द फॉरेन बॉडी इंटर्स इन आवर बॉडी विच harms our body, which causes diseases like that of germs, pathogens, any other foreign substance. These antibodies activates our immune system in order to destroy them. And another part which is present in our blood, that is the antigen. और antigens जो होते हैं dear students, वो present होते हैं on the surface of a red blood cells. और यही एंटीजेंस और एंटीबॉडीज मिल के डिटरमाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स ब्लड सिस्टम और ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. तो जब हम बात करते हैं हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ब्लड सिस्टम्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज ABO ब्लड सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड एज RH ब्लड सिस्टम. वी विल डिस्कस दैम सेपरेटली. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो ये इन्वॉल्व करता है एंटीजन AB एंड एंटीबॉडी AB. That means presence of antigen and antibody. On the behalf of presence of antigens and antibody, we classify human population into four groups. One group with antigen A is called group A, and one group with antigen B is called as group B, and one group with antigen AB is called as AB group, and one group which have neither antigen, that is called as O group. O here represents my dear students as zero or null. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि O जो है ये रिप्रेजेंट करता है जीरो और नल बिकॉज देयर इज नीदर एनी एंटीजन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटीजेंस होते हैं ये और एंटीबॉडीज होते हैं, दे रिमेन टुगेदर. और जब एंटीजन ए होगा प्रेजेंट विथ एंटीबॉडी बी, यानी कि एंटीजन ए जो होता है ये प्रेजेंट होता है विथ एंटीबॉडी बी, और एंटीजन बी होता है प्रेजेंट विथ एंटीबॉडी ए.
और एंटीबॉडी ए जो होती है, दैट मीन्स सॉरी, एंटीजन ए बी जो होता है, उनमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं ओ की, तो वहाँ पे एंटीबॉडी होती है, दैट इज ए एंड बी, माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जब हम RH सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हम रेसस फैक्टर भी कहते हैं, जो एक्चुअली डिस्कवर हुआ था 1937 में, डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कवर किया था कैरल लैंसेस्टर ने और अलेक्जेंडर वैनर ने। उन्होंने इसका नाम RH सिस्टम या RH फैक्टर इसलिए दिया, दैट्स कॉल्ड एज रोसेस फैक्टर, बिकॉज it was similar to the rhesus monkeys, that's why they call it as a RH factor. जब हम RH system की बात करते हैं, on behalf of that we have 8 types of blood groups, dear students. पहले हम कहते हैं कि हमारे पास 4 types of blood groups होते हैं, A, B and O. लेकिन जब हम RH system की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 8 types of blood groups होते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि जब हम RH फैक्टर की बात करते हैं तो RH फैक्टर इज ऑल्सो एन एंटीजन, इट्स अनदर काइंड ऑफ एंटीजन। ये भी प्रेजेंट होता है इन ब्लड ग्रुप्स में। और अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो वी कॉल एट ब्लड ग्रुप एज पॉजिटिव, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं नेगेटिव। लाइक दैट ऑफ, अगर एंटीजन RHD प्रेजेंट है, वी कॉल दैट ब्लड ग्रुप एज पॉजिटिव। लाइक दैट ऑफ A पॉजिटिव, A नेगेटिव, तो 2 आ गए हमारे पास A के, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेस ऑफ RH सिस्टम वी हैव 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सो हाउ दिस ब्लड ग्रुप्स गेट्स इनहर्टेड, ये ब्लड ग्रुप कैसे इनहर्ट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक इजी मेथड लेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए जो हमें जल्दी समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो एक पर्सन के पास 1 ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि 4 में से उसके पास एक ब्लड ग्रुप होगा। या तो एक शख्स के पास A होगा, या B होगा, या AB होगा, या O होगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ द एंटीजन, या जिनको हम जीन्स बोलते हैं, जो 3 होते हैं। रिमेंबर इट, IA, IB, IO, या आप कह सकते हैं ABO। जो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम को। जो IA एंड IB होता है, दे नेवर शो डोमिनेंस ओवर ईच अदर, यानी कि ये डोमिनेंट नहीं रहते हैं एक दूसरे पे, सो दे आर कॉल्ड एज कोडोमिनेंट। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि कोडोमिनेंस क्या होती है, तो दे आर शोइंग द कोडोमिनेंस A एंड B। और जब आप बात करते हैं I एंड IB, ये दिखाते हैं डोमिनेंस ओवर IO। यानी कि अगर आप 2 बंदों की शादी कराते हैं, मेल और फीमेल की, तो जो उनके पास, अगर मेल के पास A ब्लड ग्रुप है, फीमेल के पास B ब्लड ग्रुप है, जो उनका चिल्ड्रन होगा दैट मे हैव द AB ब्लड ग्रुप, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग द डोमिनेंस ओवर ईच अदर। और अगर आप मेल के पास A होगा और फीमेल के पास O होगा, तो वहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी द A, बिकॉज IA शोज द डोमिनेंस ओवर IO। इसी तरह अगर B होगा, IB आल्सो शोज द डोमिनेंस ओवर IO, that means blood group will be A or B, because it is they are showing the dominance over O। तो ऑल्दो यहाँ पे 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप्स को, लेकिन एक शख्स के पास, एक पर्सन के पास सिर्फ दो जीन्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे उसके ब्लड ग्रुप को, इधर IA, IB, IA, डियर स्टूडेंट्स, और IA, IO एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम टेबलेट करते हैं इन चीज़ों को, तो जैसे इससे हमें जल्दी समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 2 बंदों की शादी की, एक मेल और फीमेल की, और जो जीन्स ट्रांसमिट हुए इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एलील्स, दैट इज IA एंड IA, जो इनका चिल्ड्रन होगा दैट मे हैव द ब्लड ग्रुप A। फिर से मैं यहाँ पे एक बार, अगर हमने मेल के पास ब्लड ग्रुप है A, फीमेल के पास भी ब्लड ग्रुप है A, दैट मीन्स जीन्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं A एंड A, तो उनके चिल्ड्रन जो होंगे उनके पास जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी A। अगर उनके पास, मेल के पास A है या फीमेल के पास A है और दूसरे के पास O है,
तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा चिल्ड्रन का वो होगा ए. वाई? बिकॉज ए शोज डोमिनेंस ओवर ओ. सिमिलरली अगर ए जीन है और बी है, आई ए है और आई बी है, तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा ए बी, बिकॉज इट शोज द को डोमिनेंस. इसी तरह अगर जीन्स बी एंड ओ है तो जो ब्लड ग्रुप होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लड टाइप होगा दैट विल बी द बी, बिकॉज बी शोज डोमिनेंस ओवर ओ. एंड फिर से अगैन अगर बी भी होगा तो वहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी बी, बिकॉज दे शोज द को डोमिनेंस. सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके पास ब्लड ग्रुप ओ होगा दोनों के पास, तो जो चिल्ड्रन के पास ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ओ. यानी कि ओ हर जगह रेसेसिव रहता है, लेकिन अगर ओ हो दैट मीन्स रेसेसिव, दैट विल बी, अगर दोनों के पास ओ है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो चिल्ड्रन में आएगा दैट विल बी द ओ. अब पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा? जब आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा देन इट विल बी द पॉजिटिव. सपोज अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है फर्स्ट वन में देन इट विल बी द ए पॉजिटिव. अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट है देन इट विल बी द नेगेटिव. Thank you, my dear students. Hope you got it very well. Thank you.